Okay, good afternoon. Good afternoon, sir. So we'll start the lecture now. The topic is vectors. So we'll go through the theory quickly and then we'll start solving some problems. When I solve problems, you'll understand what kind of problems are going to come in exam and how to solve them. Okay. Now, this slide will be, I think I shared this document already with you. And here some definitions of vectors are given. Everybody knows that vector is a quantity that can be represented if we know the magnitude as well as direction of that quantity. That means any vector quantity needs two things to be specified. One is its magnitude, second thing is its direction. Examples of vector quantities are displacement, velocity, force, torque, etc. So these are all vector quantities because displacement happens in certain direction. For example, position vector is also in certain direction with reference to origin. Velocity also has certain direction. Force also has direction. So these quantities have directions. Without directions, the information about a vector is incomplete. So you need to specify both to get the or to convey the complete information about a vector quantity. Whereas a scalar quantity is a quantity that doesn't have any direction. There is no such thing as direction for a scalar quantity. For example, mass is a scalar quantity. Work done is a scalar quantity. Flux, electric flux, magnetic flux, all these are scalar quantities. Now the thing is, when we say direction of a vector, some vectors are natural vectors whose directions are intuitively understood. For example, here you have a vector denoted by a bar. You have a vector denoted by a bar here. Okay, so vector denoted by a bar is here. Now, for example, if the displacement of particle is from point P to point Q, then the displacement vector can be represented by this vector. So the direction is simple. The direction is from the starting point to the ending point of the journey. And if the particle is going with certain velocity in that direction, then vector can be represented by an arrow going in that particular direction. So, and if you have a vector like force also can be represented by an arrow in the direction of force. And what does the magnitude of vector, how is the magnitude of vector inferred? For example, if you have this vector, if you have one vector here, if you have one vector like this, okay, suppose it has magnitude 5 Newton. Suppose this is a vector representing some force. Then a vector of 10 Newton will have length double the, one second. Give me a second. Yeah. So the magnitude of a vector is represented by the length of the vector. So magnitude is proportional to length. More the length, more the magnitude. Less the length, less the magnitude. And there are some vectors whose direction is not real direction, but the direction is artificially defined. For example, there are vectors known as axial vectors. So what are axial vectors? Can anyone tell me? Axial vectors? What are axial vectors? So axial vectors are vectors obtained by cross product of other vectors. Now tell me an example of an axial vector. Torque. Torque is an example of axial vector.
So if you want to write torque, tau bar, it is given by the cross product of position vector and force vector. So this is, you know, an axial vector. Now tell me, is the direction of torque real or artificially defined? It is Artificial. artificially defined using right hand thumb rule. Now can you see that in the diagram here? In the diagram here, he is giving us the direction of what? Axial vector. Now your fingers will give you the direction of torque. For example, if you are opening a door, the direction of opening of door is the direction of your fingers, and your thumb will give you the direction of that torque. Okay, you are getting my point. Suppose you are closing the door, use your right hand, and along the direction of door closing, you put your fingers, the thumb will give you the direction of that vector. Okay, now if the door is opening, the direction of fingers will also reverse and thumb will also reverse. You are getting my point. Okay, now for example, if the door is, if you are looking at the top view of the door, if the door is closing like this, okay, suppose the door is closing like this, this is the axis about which the door is closing. Now tell me, what will be the direction of the torque applied on this door? Will it be out of the page or into the page? Use your right hand, direct your fingers, okay, along the direction. Yeah, it will be out of the plane. Now suppose the door is closing like this. This is the top view of the door. Okay, now use your right hand. You use your right hand rule and tell me what will be the direction of the torque. In green case, the direction of torque is outside, so I'm representing it like this. And in red case, the direction of torque will be into the page, so the direction is represented like this. Now these are what? What are these? These are axial vectors. Do you agree? Yes, sir. So let me just tell you in detail here. Suppose you have a door like this. Suppose you have a door. You have some door like this. So just let me use some bull color. So this is your door. Okay. Now this is the axis about which your door is rotating. Okay. Now you are applying a force in this direction to the door. So this is the direction of force you are applying. So this is the force vector. Do you agree? Yes, sir. And at which point you are applying? At this point, right? At this Yes. point you are applying. So this is the position vector. This is the position vector r bar. This is the position vector R bar. r bar. Let me just write it down. R bar like this. So this pink color vector is the position vector. Now what is the direction? How will the door rotate? Tell me, how will the door rotate? The door will rotate something like this. If you apply torque like this, the door will rotate something like this. Do you agree? Yes, sir. Okay, the door will rotate like this. In this direction, the door will rotate. Now, if you put your fingers in the direction of rotation, your thumb will point upwards. Okay, Yes, so sir. your thumb will point upwards. So the torque is in upward direction. Torque is in Upward direction. upward direction according to right hand thumb rule, right? Yes, sir. Now tell me, if I do r cross f, how should I do r cross f? So what I do is I put r like this, and I put f also in a way such that the vectors are co-initial. What is the meaning of co-initial? Start with the same point. They have common tails, you can say. They have common tails. So I will just slide the vectors. You can slide some vectors. You can slide vectors of force. You can slide vectors of displacement. You can slide vectors of what? Force or velocity. You cannot slide certain vectors like position vectors. That's why what did I do here? See, position vector I kept as it is. I slided the vector of f bar such that it is a they both are co-initial vectors. Now, when I say r cross f, I should start from r and end at f. Are you getting my point? Yes, sir.
So r cross f, I'm coming in this direction. So if I put my finger starting from f and ending at starting from r, what is tau? R cross F. Tau is r bar cross f bar. So when I say tau is r bar cross f bar, I start my fingers at r bar, I end my fingers at f bar. My thumb will give the direction of torque. So here in this case, the direction of torque is बाहर के साइड है सर, मतलब ऊपर. upwards. ठीक है, क्लियर? नाउ सी, ये जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो रियल है कि आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियली डिफाइंड है थ्रू राइट हैंड थंब रूल. दिस इज नॉट ए रियल डायरेक्शन. सो दोस काइंड ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड व्हाट? Axial vectors. एक्सियल वेक्टर्स, और सूडो वेक्टर्स भी बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? सूडो वेक्टर्स भी बोलते हैं. ठीक है, क्लियर? Yes Now, sir. see, cross product is see, r cross f is not equal to f cross r. In fact, रिलेशनशिप क्या है इनमें? r क्रॉस f इज इक्वल टू माइनस ऑफ f क्रॉस r. क्यों? अगर f क्रॉस r से स्टार्ट करें आप, फॉर एग्जांपल ये रेड कलर का एरो मैं बता रहा हूँ, अगर आप f से स्टार्ट करें और r पे एंड करें तो डायरेक्शन क्या आता है f क्रॉस r का? चेंज हो जाता है सर, नीचे चले. इनटू द प्लेन रहता, राइट? नीचे. तो नीचे रहता. ओके, वो लिख देंगे हम लोग इधर. सी, आई एम राइटिंग इट हियर. r क्रॉस f इज out of the plane, f cross r is Into the plane. into the plane. into the plane. So these things you have to know about cross product, and we'll learn other details of cross product soon. ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सियल वेक्टर. ठीक है, नेक्स्ट जो है ना, इक्वल वेक्टर दिया. टू वेक्टर्स इक्वल होने के लिए उनका डायरेक्शन भी सेम होना जरूरी है और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना जरूरी है. क्लियर? Okay, and what are opposite vectors? Two vectors with equal magnitude but opposite directions. What is the other name for opposite vectors? These are also called antiparallel. Antiparallel vectors भी बोलते हैं. ठीक है, okay. Next, and antiparallel मतलब कभी antiparallel equal in magnitude रह सकता, कभी नहीं रह सकता. But every opposite vector is antiparallel vector, but every antiparallel vector is not opposite vector. You are getting my point? Yes sir. And every equal vector is parallel, but every parallel is not equal. Okay, so that is quite easy to see. Now a b अगर वेक्टर को उनके इनिशियल और एंडिंग पॉइंट से और टर्मिनल पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे, ओके, इंस्टेड ऑफ, फॉर एग्जांपल हियर देखो, सपोज इसको p बार समझो और इसको समझो q बार. p बार इज इक्वल टू व्हाट? p bar is equal to ab bar. We can write in both ways, right? p bar को कैसा लिख सकते हैं आप? ab bar भी लिख सकते हैं. q bar को कैसा लिख सकते हैं आप? यहाँ पे q bar, ba bar. ये बार. And you can clearly see that p bar is equal to minus of q bar and vice versa. q bar is equal to minus of p bar. So these are some simple things you need to keep in mind. ठीक है ना? Yes sir. अच्छा, तो ये तो हो गया कुछ basic things about vectors. One more thing you see, any two vectors, if you take any two vectors in 3D also, any two vectors in 3 dimensions, अगर आप ले लोगे तो any two vectors will be coplanar. Do you agree? If you take, आप कोई भी दो vectors ले लो स्पेस में, वो एक प्लेन में आते. Do you agree? How sir, how? Okay, so coplanar मतलब the vector should lie in one plane, two-dimensional plane. Okay, clear? Now coplanar vectors means what? Two vectors must lie in same plane. Clear? Now if you take any two vectors, random any two vectors, they will have a common plane. Clear? एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं आप कोई भी दो वेक्टर्स. क्लियर? Now if you take a third vector, the third vector may lie in the plane or may not lie in the plane. Do you agree? Yes sir. Okay, so जो अगर दो वेक्टर ले लिए तो उसमें से तो एक प्लेन जाता. ठीक है, you hold two pens in your hand, take the two pens in any direction, those two pens will fall in a plane only, one single plane. If you take a third pen, you can place that third pen, that third pen or pencil in the plane containing first two vectors, or it may be out of the plane containing those two vectors. Do you agree? Agree sir. ओके फाइन. अच्छा, मेरे को ये बोलो, अब एक छोटा क्वेश्चन पूछता हूँ, चेक कैसा करते कि तीन वेक्टर्स कोप्लेनार है कि नहीं?
क्रॉस प्रोडक्ट 0. The determinant 0. डिटर्मिनेंट 0 आता. वेरी गुड. ओके फाइन. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है. सो देखो, when I take cross product of two vectors, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते दो वेक्टर्स का, तो एक थर्ड वेक्टर आ गया से सी बार. नहीं, सी बार नहीं, I'll take it as some p bar. Okay, now can you see that this p bar is perpendicular to both a bar and b bar? Yes, sir. In fact, this p bar is perpendicular to the plane containing a bar comma b bar. Do you agree? Yes, sir. है कि नहीं? क्योंकि देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसा निकालते आप, ए बार क्रॉस बी बार का क्रॉस प्रोडक्ट कैसा निकालते हैं? ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज क्या है? थीटा The angle between the two vectors. एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार. अग्रीड. इनटू व्हाट इज लेफ्ट, और क्या चाहिए? इनटू n cap. P vector. N cap. Now n cap is a unit vector perpendicular to both a bar comma b bar. Do you agree? And Yes, given by right hand thumb rule. है क्या नहीं? सपोज ये ए बार है और ये बी बार है. ठीक है, ए बार बी बार. नाउ दिस विल लाई इन सम प्लेन. सपोज ये प्लेन में है ये दोनों. ठीक है. वेयर विल बी पी बार? इट विल बी अप द प्लेन. कैन यू सी दैट? Perpendicular. This will be a bar cross b bar. Why? Because अगर a से स्टार्ट करे आपके फिंगर्स और b पे एंड करे तो your thumb will point upwards. Clear? Do you agree? Yes, sir. Okay. Now, How, sir? okay, समझ में आया ना? Now, if a bar comma b bar comma c bar lie in a plane, और इन अदर वर्ड्स ये तीनों क्या है? कोप्लेनर है. Perpendicular to कोप्लेनर है. Then what is a bar cross b bar dot c bar? क्या था? So देखो ये p bar dot c bar आता. Do you agree? Now what is angle between p bar and c bar? 90 degrees. 3 degree. 90 degrees. And how to take dot product? Dot product कैसा निकालते आप? For example, p bar dot q bar कैसा निकालते? It is magnitude of p bar into magnitude of q bar into cos of angle between them, cos alpha. Where alpha is what? 90 degree. 90. नहीं, alpha is angle between p and q. Alpha is angle between P and Q. यहाँ पे क्या है? एंगल बिटवीन p एंड c 90 डिग्री है. तो p बार डॉट c बार क्या होता? 0. मैग्नीट्यूड ऑफ p इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ c इंटू cos ऑफ 90. cos ऑफ 90 क्या है? 0. दैट मीन्स इफ थ्री वेक्टर्स कोप्लेनार होना है आपको तो उनका ये रिलेशन 0 आना. ये a बार क्रॉस b बार डॉट c बार क्या आना? 0 आना. इसको बॉक्स एबीसी भी बोलते. एमपीसी वालों को मालूम है ये बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार. ओके. और ये बॉक्स शॉर्टकट में कैसा निकालते हैं आप? ये बॉक्स की
ये बॉक्स की वैल्यू कैसा निकालते? फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू वन सिंपल दिस थिंग. सपोज ए बार इज सम ए आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. सर हम लोगों को ही मालूम सर ये. मालूम है ना? मालूम सर. ओके. आई के साथ आई का निकालना है तो जे का के का मल्टीप्लाई कर लेना रहता है माइनस. ओके फाइन. अच्छा, यहाँ पे ए बार प्लस बी बार कैसा निकालते हैं? आई जे के ए वाई ए जेड. आपके पास रिसाउंड आ रहा किसी के पास? ओके, दिस इज हाउ यू टेक आउट क्रॉस प्रोडक्ट. अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर आता, राइट? सो क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट. ओके, व्हाट अबाउट ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार? ऐसा निकालते हैं. कैसा निकालते? क्लियर? विल टेक द डिटर्मिनेंट. अगर ये जीरो आया तो वेक्टर्स क्या है? कोप्लेनार है. अगर ये नॉन जीरो आया तो वेक्टर्स क्या है? 3 नॉन कोप्लेनार है. क्लियर? ओके, कैसा निकालना? क्या बोले? 3 आ गया ना, सी भी आ गया ना, इसका कैसा निकालना है? नंबर्स रहते ना. ये देखो, ए बार एक कुछ नंबर्स देता आपको. फॉर एग्जांपल देखो, ए बार जो है ना कुछ देता आपको ऐसा. ए बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप देता. बी बार क्या देता? कुछ और देता. 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप देता. ओके, सी बार जो है ना एक और कुछ देता. लेट इट बी, कुछ बोलो. 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k. अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना इजी है ना. देखो, जस्ट राइट द नंबर्स. 3 रोज 3 कॉलम्स में आ जाते. 1 1 1 2 2 2 3 3 3. अब कैसा निकालते हैं? जब 1 लेते, 1 लेने के बाद क्या करते? 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2. ओके, फिर ये जो सेकंड का नेगेटिव लेते, ये जब लेते ना माइनस लेते, ये प्लस लेते, ये माइनस लेते और ये प्लस लेते. तो -1 इंटू, जब ये, अच्छा, जब ये चूज करे थे 1 तो ये 2 कट करके ऐसा करे ऐसा करे. ठीक है, अब ये नंबर ले रहे तो ये कट कर देते, ये इधर मल्टीप्लाई करते और ये इधर मल्टीप्लाई करते. समझ में आया? यस सर. ओके, फिर अब +1 लेते. फिर अब क्या लिया मैं? ये लिया, ये वाला लिया. तो ये रो ये कॉलम कट कर देंगे, ये प्लस ये माइनस. 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2. ओके, एनीवे जीरो आता. ये क्यों जीरो आता? साफ साफ दिख रहा है, ये तीनों कोप्लेनार है. एक्चुअली कोलिनियर है तीनों. समझ गए? जी हाँ सर. अगर कोप्लेनार नहीं है तो नॉन जीरो आती इसकी वैल्यू. ये तो जीरो आता. देखो, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 ही आता. ठीक है, समझ में आया? आ गया सर. तो ये कोप्लेनारिटी चेक करने का मेथड है. ठीक है, ओके. अच्छा, एक वेक्टर को स्केलर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप. फॉर एग्जांपल 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या होता? डायरेक्शन सेम रहता, मैग्नीट्यूड डबल हो जाता. 3 से मल्टीप्लाई करें तो ट्रिपल हो जाता. ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाता? हाफ हो जाता. क्लियर? यस सर. ओके फाइन. अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू मल्टीप्लाई बाय -2 वेक्टर
मैग्नीट्यूड डबल हो जाता है, डायरेक्शन रिवर्स। ठीक है, समझ गया ना? यस सर। Okay, next. So next we'll go for Cartesian system in 3 coordinates. Now any vector, generally we can, if you are taking vectors in space, those vectors are called 3-dimensional vectors. समझ गए? आप कोई भी वेक्टर स्पेस में उतारे और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस है, क्लियर? तो आपका जो वेक्टर है ना, कोई भी वेक्टर ड्रॉ करो, it can be written as combination of 3 base vectors. Those base vectors are called I cap, j cap and k cap. What is I cap? I cap is the unit vector along x direction. What is j cap? J cap is the unit vector along y direction and k cap is the unit vector along z direction. Clear? Now कौन सा भी वेक्टर आप अगर स्पेस में ड्रॉ करें तो उसका इंक्रीमेंट x डायरेक्शन में कुछ हो सकता, y डायरेक्शन में कुछ हो सकता, z डायरेक्शन में भी कुछ हो सकता. डू यू अग्री? ओके सर so if I write 2i cap plus 3j cap plus 5k cap, that means if I move suppose ab bar है, ये ab bar is equal to ये है, that means if I move from point a to point b, x डायरेक्शन में कितना मूव हुआ है? x डायरेक्शन में 2 यूनिट, हुए, y डायरेक्शन में 3 यूनिट और z डायरेक्शन में 5 यूनिट्स मूव हुए. ठीक है, so that's what it represents. So what is 2i cap? Unit vector along. No, it is vector of 2 units in x direction. What is 3j cap? Vector of 3 units in y direction. And 5j cap क्या है? Vector of 5 units in z direction. Direction. Now what can you say about these vectors? This vector. अच्छा, कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता नंबर. फॉर एग्जांपल 2i cap minus 7j cap minus 5k cap, ऐसा भी हो सकता, right? So basically what it means is you are going in the opposite direction to y and you are going in the opposite direction to z by 7 units and 5 units respectively. Clear? यस सर. अगर ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा तो क्या बोलते हैं आप? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? Under root 2 square plus 7 square plus 5 square. Plus 5 square. ओके, एक्चुअली माइनस भी अगर करे तो आपको वही आता, ठीक है? सो 2 अंडर plus minus 7 square plus minus 5 square. Even if you do, you'll get the same thing. So generally that minus is neglected. समझ में आया? यस जी सर. सर. This is the magnitude. So magnitude को कैसा लिखते हैं? Suppose ये है आपका p bar. तो magnitude को कैसा लिखते हैं? p से लिख सकते हैं आप और mod of p bar भी लिख सकते हैं. ठीक है, समझ में आया? यस सर. Okay. What about direction? Direction of this vector. Direction. वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है. ओके, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है या वेक्टर खुद भी बताता डायरेक्शन. ठीक है, हाँ. तो बट यहाँ पे अगर वेक्टर 3D में है, अगर 2D में है तो थीटा से दे सकते डायरेक्शन आप, मगर अगर वेक्टर 3D में है तो डायरेक्शन कोसाइंस देना पड़ता. क्या देना पड़ता? डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन कोसाइंस L, M और N, 3 रहते डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है, L, M, N. L क्या होता? L होता cos अल्फा, M होता cos बीटा एंड N होता cos गामा. अब क्वेश्चन ये है कि अल्फा बीटा गामा क्या है यहाँ पे? सो अल्फा क्या है? वेक्टर का अल्फा एक्स एक्सिस के साथ एंगल. वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल है. अग्रीड? सो अल्फा is angle made by वेक्टर along x axis. vector with x axis. तो बीटा क्या है? with y axis. ठीक है, Gamma is z axis. गामा जो है ना Z axis.
z एक्सिस से जो एंगल बनाता वो है, ठीक है। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज है डायरेक्शन कोसाइंस के। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1. ठीक है। अच्छा, टेल मी व्हाट इज l इक्वल टू? l इक्वल टू x बाय r, m is equal to y by r, y by r। r क्या है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड ऑफ speed of vector वेक्टर है, ये जो है ना z बाय r, r है। अच्छा, r क्या है? मैग्नीट्यूड है ना, तो r इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x square plus X y square plus square y plus square plus z स्क्वायर। अग्रीड? yes sir, तो अकॉर्डिंग टू दिस, अच्छा ये इट इज आल्सो इक्वल टू क्या? ये इक्वल टू cos अल्फा भी होता, ये इक्वल टू cos बीटा भी होता, और ये इक्वल टू cos गामा भी होता, ठीक है। gamma. अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर? तो ये क्या है? x बाई आर होल स्क्वायर प्लस y बाई आर होल स्क्वायर प्लस z बाई आर होल स्क्वायर। तो क्या आता बोलो? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाय r स्क्वायर विच इज इक्वल टू R r square. स्क्वायर बाय r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अच्छा, इन अदर वर्ड्स ऐसा भी लिख सकते हैं आप, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज सेम थिंग एज l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ में आया? yes sir, अच्छा, एक चीज है, कभी कभी वो अल्फा और बीटा की वैल्यू देता और गामा की वैल्यू पूछता, ठीक है। तो कभी कभी गामा की वैल्यू पॉसिबल रहती, कभी कभी पॉसिबल नहीं रहती। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? yes sir, कभी कभी अल्फा की वैल्यू पॉसिबल रहती, कभी कभी नहीं रहती अल्फा की वैल्यू पॉसिबल। समझ में आया बात? एंगल अपने एंगल से हटके दिया तो नहीं मालूम कर सकते ना सर, जैसे देखो कि देखो, अगर देखो अगर अल्फा 60 डिग्रीज दिया, बीटा भी 60 डिग्रीज दिया, तो गामा फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसा कर सकते हैं, बोलो। फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर Cos 60 square. प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 ना? अग्रीड? yes sir, बोलो cos स्क्वायर 60 क्या है? 1/4। 1/4 plus 1/4 plus cos square gamma equals to 1 तो 1/4 प्लस 1/4 क्या होता? by 2 1/2. अगर 1/2 गया तो क्या बचता? 1 माइनस 1/2 1/2। तो cos गामा क्या हो गया? प्लस और माइनस 1/√2। √2. तो गामा इज इक्वल टू दो चीजें हो सकते हैं, 45 डिग्री 135 डिग्री। अग्रीड? yes sir, अच्छा, Yes sir. एक और पॉसिबिलिटी है। देखो, अगर अल्फा 30 डिग्रीज दिया, बीटा भी 30 डिग्रीज दिया, गामा अभी फाइंड नहीं कर सकते आप, चेक कर लो। cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। बोलो क्या है? 3/4 √3/2 का स्क्वायर ना? yes sir, 3/4 प्लस 3/4 3/2। तो cos स्क्वायर गामा कितना हो गया? minus 1/2 -1/2। उसके बाद कुछ कर सकते हैं? minus 1/√2 नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। तो cos स्क्वायर गामा क्या है आपको? नहीं मालूम, नहीं, -1/2 आया। So वो root तो of negative number is not real। हाँ सर, इसका मतलब ऐसा वाला वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, और ऐसे वाले कितने वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं? टू वेक्टर्स, जिसका गामा 45 भी हो सकता है, जिसका गामा 135 भी हो सकता है। अग्रीड? yes sir, ओके, नाउ कभी कभी यूनिक वेक्टर भी आता आपको, कभी कभी यूनिक वेक्टर भी आता। फॉर एग्जांपल, अल्फा 30 डिग्रीज है
और बीटा जो है ना 60 डिग्रीज है, तो गामा इज इक्वल टू क्या है, ये यूनिक आता आपको, आप चेक कर सकते। देखो cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी बोलो वैल्यू बोलो। 3/4 plus 5. 1/2. तो व्हाट इज दिस? 1/4 प्लस 3/4 0. 4/4 1. 1 आता, 1/4 प्लस 3/4 1 माइनस 1 क्या आता? 0। 0. तो cos गामा इज इक्वल टू 0 0, तो गामा क्या था? 5/2 90 डिग्रीज। 5/2. ठीक है, अभी डिग्रीज में बात कर रहे तो डिग्रीज में देंगे आंसर। ठीक है, तो ये यूनिक वेक्टर है। कौन सा यूनिक वेक्टर है? जिसका अल्फा 30 और बीटा 60 होता है, वो एक यूनिक वेक्टर आता। ठीक है, समझ में आया? ओके, सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट वेक्टर्स इन 3 डायमेंशंस। ओके, अच्छा, वेक्टर इन 3 डायमेंशंस जब देता, जब देखो एक एग्जांपल 3i कैप प्लस 2j कैप plus 5k cap, this is a bar, this is b bar, equals to I cap minus j cap plus 2k cap. क्रॉस डॉट प्रोडक्ट कैसा निकालते बोलो? a bar dot b bar 3 I cap into I cap. plus 2 into minus 1 -1 5 plus into 5 into 2. this is how you take out the 11 डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। एंड आईजे के नहीं आता, देखो डॉट प्रोडक्ट में आईजे के नहीं आता, क्या आता? खाली एक नंबर आता, 11 आ रहा सर उसका। 11 आता। सो डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो ए डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड Scalar product. डॉट प्रोडक्ट is also स्केलर प्रोडक्ट। scalar product. Why? Because इसका जो प्रोडक्ट रहता, जो आंसर रहता, वो क्या रहता है? एक स्केलर रहता, एक नंबर आता। ठीक है, क्रॉस कैसे निकालते बोलो? ए बार डॉट क्रॉस। अच्छा, द गुड थिंग अबाउट राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ आई कैप जे कैप के कैप इज आपको कोई भी राइट हैंड थंब रूल ये वो यूज करने की जरूरत नहीं, आपको आंसर ऑटोमेटिकली इन टर्म्स ऑफ आई जे के आ जाता। समझ गए? आई कैप जे कैप के कैप 3 to 5 और क्या था? 1 - 1 2। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकालते क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या आता बोलो? 4 plus 5 6 minus 5 9 minus 1 ओके, डिटर्मिनेंट क्या आता बोलो इसका? तो बेसिकली आई कैप लेते हैं, आई कैप जब लिए ना, ये रो और ये कॉलम कट कर देना, कट कर देके दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। क्लियर? हाँ सर। तो क्या आता बोलो? 9 2 into 2 माइनस -5 -1 into 5। क्लियर? अच्छा, जब सेकेंड वाला लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं, -j. तो माइनस जे कैप लेते हैं। तो जब ये ले रहे हैं आप, ये कट कर दो, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो कितना आता बोलो? 6 plus 5. 6 minus 5 आई थिंक इट इज 3 into 2 माइनस 5 into 1 into 5, करेक्ट? प्लस के कैप। जब के कैप लेते तो ये रो और ये कॉलम कट कर देते, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, -2. -3 -2. it is 3 into -1, am I right? minus 1 into 2, जी सर। तो क्या आता बोलो? आई कैप इंटू पूरा ओवर plus 5. 4 minus 5 minus j Sir, 4 plus 5 Sir, plus 5. 4 plus 5
minus 6 minus 5 6 minus 5 plus minus 3 Minus minus 2. तो आंसर क्या आया बोलो? 9 आई क्या? 9 9 minus plus j minus cap j cap minus 5 minus 5 k cap. This is A bar cross B bar, right? 5. Acha. So what did you get here? You got a vector. Okay. Yes, You sir. got a vector. This is a vector. So cross product is also called Vector product. Vector product. cross product is also called a vector product. अच्छा, जो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आ रहा अपने को, ठीक है, जो क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आ रहा, इज इट अ रियल वेक्टर इन फिजिक्स? yes sir नो, इट इज नॉट ए रियल वेक्टर, इट इज अ सूडो वेक्टर. अभी जो डिस्कस करे थे हम लोग, एक्सियल वेक्टर. ठीक है, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर्स आ रहे हैं ना, दे आर नॉट रियल वेक्टर्स, दे आर सूडो वेक्टर्स और एक्सियल वेक्टर्स, लाइक टॉर्क है. ठीक है, ऐसे जो भी वेक्टर्स है ना क्रॉस प्रोडक्ट से आते, वो क्या है आपके? सूडो वेक्टर्स है. क्लियर? Pseudo vectors. Okay. Yes, sir. Next, here, if the vector is two dimensional, ठीक है, अगर वेक्टर आपका टू डायमेंशनल है, सपोज यू हैव ए टू डायमेंशनल वेक्टर, और if you are looking at vectors in a plane, if you are looking at vectors in a plane, खाली x axis और y axis are enough, right? Yes, sir. Y axis are enough. Okay, and generally if you take this vector, ये कोई भी वेक्टर ले लिया आपने, let us call it r bar. ये वेक्टर का जो है ना मैग्नीट्यूड इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर. क्लियर? एंड it can be written as sum of two vectors. One in x direction and one in y direction. Do you agree? तो ये जो कंपोनेंट है ना वेक्टर का, ये जो कंपोनेंट है उसको x कंपोनेंट बोलते हैं, और ये जो कंपोनेंट है उसको क्या बोलते हैं? Y y component. कंपोनेंट बोलते हैं. तो उसको y बार और x बार बोल के लेंगे. ठीक है, तो आई एम राइटिंग दैट. सो r बार को कैसा लिख सकते हैं आप? Under root. No, x bar plus y bar. So what is x bar and y bar? It is x into I cap plus y into j cap. Do you agree? j cap Yes, sir. Okay. Direction of vector is taken from positive x-axis. Positive x-axis in anti-clockwise direction. Anti-clock. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका जो आपका एंगल रहता है ना, वो ऐसा लेते हैं आप. कैसा लेते हैं? You start at positive x-axis and you go in which direction? Anti-clockwise direction. अगर clockwise जा रहे तो एंगल क्या रहता? नेगेटिव रहता. ठीक है, ये आपका थीटा है. ठीक है. Yes, sir. Now there are some relationships that you will need to remember. X is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. देखो ये इसमें दिख रहा है आपको, x क्या है? r cos theta है, y क्या है? r sin theta है. Can you see that? Yes, sir. तो अगर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये क्या है आपका? ये x है और ये y है, और ये क्या है? r है, और ये एंगल क्या है? थीटा है. जी सर. तो you can clearly see कि x is, see, x by r cos theta होता ना, x by r, तो x is equal to r cos theta होता. y by r क्या होता? sin theta होता ना, तो y equals to r sin theta. Clear? Yes, sir. तो Yes, sir. if r comma theta are given, then x comma y can be found. And opposite is also true. इसका opposite भी true है. Opposite क्या है? if x and y are given X and Y are given.
then r theta can be found. Yeah, if x and y are given, then r comma theta can be found. आप बोलो क्या है, r क्या है? Under root of x square plus y square. X square plus y. x square plus y square, and theta is tan inverse of y by x. Y Do by you agree? x. Okay. Yes, sir. So in two dimensions, in two-dimensional vectors, तो इंफॉर्मेशन क्या होना टू डायमेंशनल वेक्टर्स में? कितना होना इंफॉर्मेशन? दो इंफॉर्मेशन होना. फर्स्ट इंफॉर्मेशन मैग्नीट्यूड, R and theta. सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है? थीटा, डायरेक्शन. Angle. और व्हाट इज द अल्टरनेट थिंग? ही कैन गिव यू x and second thing he can give you y. So Y. either of these ways you can give the specification of a vector in two dimensions, correct? Whereas Yes, sir. in three dimensions, in three dimensions बोलो क्या है? X, Y, Z. We need x, we need x, we need y, or we need z. Clear? Or alternately we can have r, second alpha, थर्ड बीटा. अल्फा बीटा दिया तो गारंटी नहीं है कि गामा जो है ना यूनिक वैल्यू आना. यूनिक आ भी सकती, नहीं भी आ सकती, राइट? तो इसलिए वी नीड टू हैव Gamma. वी नीड ऑल दिस थ्री डायरेक्शन कोसाइंस टू प्रिसाइजली स्पेसिफाई. क्यों? क्योंकि कभी कभी वी हैव सीन कि अल्फा बीटा दिया भी तो गामा के दो वैल्यूज आ सकते, प्लस और माइनस आया था ना आपको 1/√2. तो 45 Yes, डिग्रीज भी आ सकता, 135 भी आ सकता. 135 degrees. सो ये चीज आप लोग माइंड में रखो. तो आइदर वे यू नीड दिस. ओके, एनीवे, तो ये इधर लिख दे रहा हूं मैं. टेक दिस इन डिफरेंट कलर, ग्रीन कलर में. ओके, ठीक है. ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो आपको यहाँ पे थोड़े बेसिक लॉज दिए हुए हैं. पहला लॉ है पैरेललोग्राम लॉ. एवरीबॉडी नोस व्हाट पैरेललोग्राम लॉ इज. तो पैरेललोग्राम लॉ कौन से वेक्टर्स के लिए है? 3D के लिए है कि 2D के लिए है? 2D के लिए. तो what basically what he says is if two vectors are given and the angle between them is known and their magnitudes is known. ठीक है? तो ये दो वेक्टर है आपके पास, एक a बार है और एक b बार है. दोनों के बीच में का एंगल मालूम है आपको. दोनों के बीच में का एंगल मालूम है. So you have information, all these information. Then you can tell something about the resultant vector. तो जो resultant vector रहता ना, resultant vector क्या है? Let us write here. Resultant vector is the vector sum of a bar and b bar. B bar. So according to parallelogram law, you can say a lot of things about r. Actually, lot of things क्या? दो चीज हम बोल सकते हैं r के. पहली चीज क्या है? मैग्नीट्यूड. दूसरा Magnitude. Magnitude of r bar or r is equal to under root of a square plus b square plus 2ab into cos theta. 2ab cos theta. So you can tell this about the resultant vector. ठीक है, समझ में आया? अच्छा, you can also give the direction of the resultant vector. पर डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पे कोई आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, तो विथ रेफरेंस देना पड़ता आपको. डायरेक्शन विथ रेफरेंस टू a बार देना पड़ता या विथ रेफरेंस टू b बार देना पड़ता. ठीक है. सो if r makes alpha with a bar, if r makes alpha with a bar, तो अल्फा क्या होता है? tan alpha equals to a tan inverse of b sin theta by a plus b cos theta. Cos theta. I'll just
give you a quick derivation of this. Actually derivation जरूरत नहीं, बहुत बार देख चुके हैं आप ये, ठीक है. Now if r bar makes beta with a bar, ठीक है, टेल मी बीटा क्या होता. लॉजिक से बोल सकते हैं आप, अगर अल्फा वो हुआ तो बीटा उसका उल्टा होता, राइट. तो इट विल बी ए साइन थीटा बाय B plus A cos theta. b plus a cos theta. Very good. b plus a cos theta. So this is your parallelogram law. Based on this बहुत सारे जो है ना प्रॉब्लम्स कर सकते हैं आप. ना पैरेललोग्राम लॉ के थोड़े एक्स्ट्रा ये है आपके चीजें हैं जो आप याद रखना चाहिए. सपोज ए बार है आपका, ये ए बार है एंड बी बार है, एंड एंगल बिटवीन जो है ना थीटा है, एंगल बिटवीन थीटा है, ठीक है. बट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए बार एंड बी बार आर इक्वल. मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए बार एंड बी बार आर इक्वल. So let me write it down. Magnitude of A bar is equal to P. Magnitude of B bar is also equal to P. तो जो रिजल्टेंट है, 2p cos theta by 2. रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है. It can be given by 2p cos theta by 2. Cos theta by 2. Okay, and obviously resultant will make theta by 2 with both A bar and B bar. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now there is, suppose R bar हो गया. अब एक और वेक्टर की बात करेंगे, P bar. Suppose P bar is equal to A bar minus B bar. Okay. Then magnitude of P bar is equal to, बोलो. Under root Under A root bar square plus B square minus 2AB cos theta. How did you get this? You got this from the previous formula only. But इस बार जब B का डायरेक्शन उल्टा हो जाता ना, अब एंगल थीटा नहीं करता, ऐसे वो 180 माइनस थीटा करता, तो cos थीटा की जगह cos 180 माइनस थीटा आता, और cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा. इसीलिए ये फॉर्मूला. अच्छा, इन केस, अच्छा ये तो ओके ओके, लेट मी राइट आर. आर ही लिखेंगे यहाँ पे, पी में नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे, आर लिखेंगे, ठीक है. इफ ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू. इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इक्वल टू पी, तो आर बार क्या होता है? 2p sin theta. 2p sin थीटा बाई 2 होता, ठीक है. 2p sin theta by 2 होता, ठीक है. You have to remember this. Clear? Okay, fine. This is parallelogram law. There are many problems based on parallelogram law. Okay, ठीक है. Let us look at some problems here. Sir, Yeah. Area of Question. triangle. क्या बोले? क्वेश्चंस वेक्टर्स में वो डायरेक्शन का नॉर्थ ऑफ साउथ ऑफ नॉर्थ वो कैसा करना नहीं समझ में आ रहा सर. वो डायरेक्शन निकालना है तो. कौन से प्रॉब्लम्स में, या एग्जाम्पल में है या अनसॉल्व में है? नहीं सर, मेरे मटेरियल में था कल, वो देख रहा था तो आया था. अच्छा अच्छा, ठीक है. एक काम करेंगे, एक बार थोड़े प्रॉब्लम्स करेंगे, तो उसमें है क्या बोलो. अच्छा, ये पहला प्रॉब्लम देखो. पहला प्रॉब्लम, एक फोर्स दिया और एक वेलोसिटी दिया, दो वेक्टर्स दिया, एंड ही इज आस्किंग पावर. सो व्हाट इज पावर? वर्क डिवाइडेड बाय Dot V. टाइम, ठीक है. वर्क को क्या लिख सकते हैं? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम. सो इट कैन बी रिटन एज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता? Velocity. तो ओवरऑल क्या आ गया आपको? पावर इज फोर्स डॉट वेलोसिटी आ गया. यू हैव टू रिमेंबर दिस. पावर इज इक्वल टू व्हाट? पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. अच्छा, ये तो डॉट प्रोडक्ट है फॉर पावर, तो पावर स्केलर होता है कि वेक्टर होता? Scalar. इट इज ए स्केलर, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज ए स्केलर, ठीक है, क्योंकि इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. अच्छा, लेट अस सी व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ बार एंड बी बार हियर. तो देखो 60
into 2, can you see? 60 into 2 plus Yes. 15 into minus 4 plus minus 3 into 5. minus 3 into 5 minus 3 into 5. तो क्या आया बोलो, कहाँ गया? 150 plus 60 ओके, लेट मी राइट डाउन. अच्छा ठीक है, पेन से लिख देंगे यहाँ पे, इधर पेन से लिख देंगे. तो ये प्रॉब्लम जो है ना, 60 इंटू 2 प्लस 15 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 3 इंटू 5. तो ये 120 है, माइनस 60 minus 60 minus 15. 15. तो minus 15. आई थिंक इट इज 45. 45. 45. अच्छा, यूनिट्स देखो क्या है, यहाँ पे न्यूटन है और यहाँ पे मीटर पर सेकंड है. तो बोथ आर एसआई यूनिट, तो ये भी एसआई यूनिट आता तो वॉट आता. क्लियर? Yes, sir. Okay, fine. Now look at the second problem. What is angle between A cross B and B cross A? Pi. Pi. 180. Because A cross B is equal to minus B cross A. Sorry, समझ गए ना? A cross Yes, B sir. equal to minus B cross A ना? इसका मतलब दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या आता? pi radians. तो पाई आता. तो इसका आंसर पाई है. ठीक है, समझ में आया? Yes. The unit vector parallel to the resultant of A bar and B bar. जब भी रिजल्टेंट बोलता तो समझ जाओ कि सम की बात कर रहा. ठीक है, रिजल्टेंट अगर खाली रिजल्टेंट बोला, कुछ नहीं बोला, तो सम की बात कर रहा. तो A bar प्लस B bar क्या आता बोलो? 4 3i. minus 1 3i क्या? 6 cap 3 plus 3 plus plus minus 2 cap. minus 2k कैप, राइट? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब जो है ना, आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है. तो यूनिट वेक्टर कैसा फाइंड करते? यूनिट वेक्टर कैसा? Divide by magnitude. A cap is equal to A bar by magnitude of A bar. करेक्ट? Yes, sir. तो लेट अस सी. यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या आता? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर. 4 square. क्या आता वो ओवरऑल? आई थिंक इट इज 9 प्लस 49. 49 मतलब 1/7. तो 1/7 इंटू 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप आता आंसर. डू यू अग्री? Yes, sir. तो इसका ये है आंसर. नो, a vector A points vertically upward, vector B points towards north. The vector product A cross B किधर फाइंड पॉइंट करता बोल रहा. ठीक है, समझ गए? Are you Yes, sir. getting? Now let me just take one page here. देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो. ये वेक्टर A points vertically upward, तो आई एम ड्राइंग इट लाइक दिस. क्लियर? ये A बार है. B बार पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ. B बार पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ. नॉर्थ मतलब क्या? इनटू द पेज है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. तो B बार का डायरेक्शन इधर है, B बार का डायरेक्शन इधर है. ठीक है, अब A बार क्रॉस B बार, यूज योर फिंगर, स्टार्ट फ्रॉम A एंड एंड योर फिंगर्स एट B. थंब का डायरेक्शन किधर आता? Along this. इधर आता. Yes, sir. तो दिस इज A बार क्रॉस B बार. तो देखो, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ऊपर अप है, नीचे डाउन है. तो राइट में क्या आता? West. अच्छा, नॉर्थ इनटू द प्लेन है, ये आउट ऑफ द प्लेन है साउथ. तो वेस्ट में क्या आता बोलो? West right side में आता है. इधर आता वेस्ट. इंडिया का मैप इमेजिन करो, समझ में आ जाता. ये वेस्ट है और ये East. east. तो, और ऑलवेज जस्ट बी केयरफुल के मैप जो है ना वॉल पे लग के नहीं है, मैप जो है ना टेबल पे रखे है, ऐसा सोचना. ठीक है? तो जनरली कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता, नॉर्थ आसमान की तरफ रहता समझते, क्योंकि स्कूल में मैप जो है ना बोर्ड पे हमेशा वैसा लटकाते. ठीक है? अगर नॉर्थ ऊपर नहीं रहता, साउथ नीचे नहीं रहता जमीन में, नॉर्थ आगे रहता, साउथ पीछे रहता, अप ऊपर रहता, डाउन नीचे रहता. क्लियर? Yes, sir. Yes, तो Yes, इसका sir. आंसर क्या है? Along west. अलोंग वेस्ट है, अलोंग वेस्ट. बी क्रॉस ए का क्या रहता?
सॉरी along east. along east रहता, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, which of the following set of concurrent forces may be in equilibrium? तो ये जितने भी फोर्सेस है उसमें इक्विलिब्रियम में कौन है बोल के बोल रहा, ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, देखो, अगर कोई भी दो वेक्टर्स है आपके पास, कोई भी दो वेक्टर्स है, ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर है इधर, ये जो थर्ड वेक्टर रहता ना, ये जो थर्ड वेक्टर रहता, तो फॉर एग्जांपल ये ए बार है और ये बी बार है और ये जो रेड कलर का है सी बार है, तो कैन यू सी दैट ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू सी बार? जी Yes, सर। sir. दिखाई दे रहा ना? हाँ सर। Now everybody knows one thing के a bar plus b bar equals to c bar. Everybody knows के ये जो c bar है ना, c bar cannot exceed the magnitude of c bar cannot exceed. बोलो, cannot exceed A plus B. a plus b, क्योंकि जब पैरेलल रखते हैं a बार और b बार तो मैक्सिमम वैल्यू c की क्या आती है? a plus b. अगर पैरेलल नहीं है, कुछ एंगल पे है, तो ऑब्वियसली a plus b से कम ही आती. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. And c cannot be less than a bar minus b bar A minus. का मॉड. अब डिपेंड करता है a बड़ा है या b बड़ा है, ठीक है? अगर a बड़ा है तो a माइनस बी से बढ़ कम नहीं रह सकता c, और b बढ़ के है तो b माइनस a से कम नहीं रह सकता. समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, अगर a इक्वल्स टू 5 है और b इक्वल्स टू 3 है, तो c की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती? 8. मिनिमम वैल्यू क्या आती? 2. दैट मीन्स c जो है ना 8 और 2 के बीच में रहना जरूरी है. 8 से बढ़ के नहीं रह सकता और 2 से कम नहीं रह सकता. क्लियर? Yes, sir. ओके, फाइन. सो बेस्ड ऑन दैट ये प्रॉब्लम बोलो. एक 3 है और एक 5 है, थर्ड वाला 1 है, राइट? तो 1 इम्पॉसिबल है. क्यों? 5 माइनस 3 मिनिमम वैल्यू क्या आती? 2 आती. तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? सेकंड वाला देखो, एक 3 है, एक 5 है और एक 9 है, ठीक है? अब देखो, 3 प्लस 5 करे तो 8 आ रहा, दिख रहा? तो 8 से बढ़ के नहीं रह सकता, तो 9 रॉन्ग है. नेक्स्ट 3 5 6, वो करेक्ट है। ये करेक्ट है क्योंकि 3 प्लस 5 8 है, 6 8 से कम है, एंड 6 माइनस 3 क्या है? 3 है, और 5 3 से बढ़ के. समझ में आया? अच्छा, इसमें रॉन्ग क्या है? 50 मैंने 50 ज्यादा 3 प्लस 5 8 है, 8 से बढ़ के है ये, तो ये पॉसिबल नहीं रहता. तो करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड ऑप्शन. थर्ड। ओके, तो 1 2 और 4 में आप क्या भी कर लो, कैसे भी अरेंज करो, जीरो नहीं आ सकता आपको. ठीक है, समझ में आया? कुछ ना कुछ बच जाता. नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू either of them in magnitude, then the angle between them is. एम्स में पूछा 2001 में. देखो ये फॉर्मूला मालूम ना आपको? फॉर्मूला रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2p cos थीटा बाय 2. तो p क्या है? either of the वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है p. p क्या है? दोनों का, ये और ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड है p. रिजल्टेंट ये आ रहा कुछ, ठीक है? तो रिजल्टेंट का भी p ही है बोल रहा, ठीक है? तो क्या आता? p इज इक्वल टू Yes, sir. 2p फर्स्ट ऑप्शन सर 60 डिग्री 1/2 इज इक्वल टू cos थीटा बाय 2. तो cos थीटा बाय 2 क्या होता बोलो? कब आता 1/2? 60 degrees. 60 degrees. तो थीटा बाय 2 इज 60 डिग्रीज, तो थीटा इज 120 डिग्री. तो आपको ये आंसर है 120. ठीक है, इस आपका आंसर है 120. इनफैक्ट आप कुछ चीजें याद रख लो, ये चीजें याद रख लो. अगर थीटा 0 है दो वेक्टर्स के बीच में तो 2p आता. थीटा 30 डिग्री है, 30 का नहीं फाइंड कर सकते, डायरेक्टली कर सकते हैं मगर थोड़ा 15 डिग्रीज का वो होना पड़ता. अगर थीटा 60 डिग्री है तो √3p है,
दो वेक्टर्स के बीच में, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स के बीच में, और थीटा 90 डिग्री है तो √2p है, थीटा 120 डिग्री है तो p है, और थीटा 180 डिग्री रहा तो 0 आता। Zero. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. और ये एक्स्ट्रा भी Yes, एक्स्ट्रा भी याद रख ले सकते हैं आप लोग, नो डोंट नीड टू रिमेम्बर, बट इफ यू वांट यू कैन। तो अगर 30 है थीटा दोनों के बीच में तो 2p cos 30/2 आता, तो विच इज व्हाट 2p cos 15। cos 15 की वैल्यू याद नहीं रहती लोगों को, बट अगर याद रखना है तो रख लो। तो cos 15 इज इक्वल टू sin 75, एंड sin 75 is equal to √3 plus 1 by 2 √2. No need to remember. If you want, you can just √3 plus 1 by 2 √2. 2 cancel हो गया, तो आंसर क्या आता? p इंटू √3 plus 1 by √2 आता। ठीक है, खैर एनीवे these things you remember, it will be handy in exam. Okay, next. अच्छा ये बोलो 7th वाला, फोर्स दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है, वर्क डन पूछ रहा, हाउ टू डू Dot product. डॉट प्रोडक्ट? तो 3 into 3 So, sir, 4 into 4 25, सिंपल। नेक्स्ट, वेक्टर p एंड q आर परपेंडिकुलर बोल रहा, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a बोल रहा। परपेंडिकुलर रहने के लिए व्हाट इज द टेस्ट? टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर रहने के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 रहना। तो if a bar dot b bar is equal to 0 then a is perpendicular to b। अच्छा, तो क्या दिया a bar और b bar, क्या दिया वहां पे? a3 a -2 -1, ठीक है, a3 a3 a -2 -1 दिया, ठीक है। तो let me write down I cap j cap k cap और ये माइनस के का, ऐसा दिया ना दो वेक्टर्स। दीज आर द वेक्टर्स दैट आर गिवन, राइट? ए बार एंड बी बार। Yes, sir. तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना, राइट? तो डॉट प्रोडक्ट निकालो, क्या है? minus 2a minus 3. 3. minus मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये क्या इक्वेशन है आपका? Quadratic. Quadratic equation. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, तो -3 है प्लस a -3 इक्वल्स टू 0। a कॉमन ले लिए, a -3 आया, +1 ले लिए तो a -3 आया, तो a + 1 इंटू a -3 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू -1 और +3, A is equals to 3. ठीक है। तो ये दो वैल्यूज पॉसिबल है, -1 और +3, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही दिया तो हम लोग वो वैल्यू ले लेंगे 3। अगर -1 भी दिया तो बोथ आर करेक्ट। एम्स में भी पूछा, एमसेट में भी पूछा, सेम क्वेश्चन। दैट मीन्स व्हाट, क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन बैंक से बनाते हैं ये लोग, इसलिए रिपीट होते हैं। खैर एनीवे, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस। समझ गए? इन दैट केस Yes, sir. फोर्सेस आर बोल के बोल रहा। सो द स्टेटमेंट दे दिया, वो क्या स्टेटमेंट दे दिया? तो A यहाँ पे vector plus B vector is equals to A vector minus B vector. let me just write it here. हाँ, तो वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर डिफरेंस। तो देखो दो वेक्टर्स ले लो, वेक्टर सम क्या होता है? a बार प्लस b बार इज परपेंडिकुलर टू देयर डिफरेंस बोल रहा, तो a बार माइनस b बार निकाले तो क्या आना आपको? 0 आना। डू यू अग्री? 0. ओके, Yes, sir. टेल मी व्हाट इज a बार डॉट a बार। ओके, इसको ऐसा लिख सकते हैं, a बार डॉट a बार। बोलो नेक्स्ट, a बार डॉट b बार प्लस b बार डॉट a बार। डू यू अग्री? b bar dot b Yes, bar sir. माइनस b बार डॉट b बार इक्वल्स टू 0. 0। समझ में आया? जी सर, उसके बाद क्या आता बोलो? वो दोनों कैंसिल होते हैं, कैंसिल हो जाते वो, क्योंकि सेम है। कौन दोनों सेम है? वो दोनों बीच वाले a b और a b. बार A b डॉट A dot B. a डॉट a क्या आता बोलो? a स्क्वायर आता।
जी क्यों? सर। क्योंकि a into cos 0 राइट माइनस b into cos 0, B square. तो a bar is equal to b आता, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b मस्ट बी इक्वल। सो आंसर क्या है आपका? Equal. They're equal to each other. B. Are In equal to each second other option. or their magnitude is equal to each other? Magnitude to each other. Magnitude. Actually are equal to each other in magnitude correct है, Which? ठीक है? तो मैग्नीट्यूड पक्का इक्वल होना है, डायरेक्शन इक्वल होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? अलग भी रहा तो इट विल स्टिल गिव यू द सेम रिलेशनशिप। क्लियर? जी सर। अगर फर्स्ट ऑप्शन डाले तो रॉन्ग है आपका, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जी सर। थर्ड एनीवे रॉन्ग है, फोर्थ तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो फोर्थ वी डोंट रिक्वायर। अच्छा, 3 वेक्टर सैटिस्फाई द रिलेशन a बार डॉट b बार इक्वल टू है, वहां पे प्रिंट में नहीं आया, इक्वल टू 0, a बार डॉट c बार इज इक्वल टू 0, देन a बार कैन बी पैरेलल टू। समझ में आया? देखो a बार डॉट b बार 0 मतलब a इज परपेंडिकुलर टू b, जी सर। a bar dot c bar equal to 0, that means a is perpendicular to c, Yes sir। that means a is perpendicular to plane containing b and c. Do you agree? Yes sir। तो जब b क्रॉस c निकालते हैं तो वो प्लेन से परपेंडिकुलर ही आता, तो a या तो पैरेलल होता है b क्रॉस c से, या एंटी पैरेलल होता। डू यू एग्री? Yes. Yes sir। Basically a is perpendicular to b, a is perpendicular to c, that means a is 100% perpendicular to the plane containing b and c. B and C। तो b क्रॉस c जब निकालते हैं तो वो भी परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग b एंड c ही रहता, तो इट कैन आइदर बी पैरेलल और एंटी पैरेलल, करेक्ट? तो योर आंसर इज व्हाट? It can parallel to B। b क्रॉस c। B cross. ये तो एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये वेक्टर होता ही नहीं। B vector B। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है क्योंकि परपेंडिकुलर है, पैरेलल तो है नहीं उनसे, ठीक है? ओके, सो इवन इफ यू कांट आंसर दिस डायरेक्टली, एलिमिनेशन से आंसर कर ले सकते हैं आप, क्योंकि फर्स्ट तो रॉन्ग है पक्का, सेकंड तो रॉन्ग है पक्का, फोर्थ वाला तो वेक्टर है ही नहीं, तो आंसर 3 रहना, ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है? Yes sir। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन किधर रहता? एंगुलर वेलोसिटी कौन सा वेक्टर है? Axis of rotation. ओके, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो एक एक्सियल वेक्टर है। क्या है? एक्सियल वेक्टर, तो उसका डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से देते, ठीक है? तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप ऑन y एक्सिस? बोलो। 0. 0, देखो 0, y j कंपोनेंट कुछ नहीं है, दिख रहा? 3i है, Yes. 4k है, j कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब j कंपोनेंट 0 है, तो आपका 0 है। अच्छा, वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, कैसा करते हैं? अगेन, व्हाट इज द टेस्ट फॉर Dot product. ऑर्थोगोनैलिटी और परपेंडिकुलर? डॉट प्रोडक्ट 0 होना। तो देखो डॉट प्रोडक्ट क्या आता? 2 into 4 प्लस 8 minus 3 12 into minus 4 प्लस 8 into अल्फा alpha इक्वल टू equals to ये क्या है? 8 plus माइनस 8 12, minus 12 plus 8। 8 alpha तो ये क्या आता? minus 4. 16 minus 12। अल्फा इक्वल्स टू माइनस 1/2 Plus 1/2. प्लस 1/2, सॉरी इज प्लस 1/2, इट इज प्लस 1/2, इधर जाके प्लस हो जाता, प्लस 1/2। कौन सा? नो नो, प्लस 1/2 ओनली। सो माइनस 4 है ना ये, Yes. इधर जाके प्लस 4 हो जाता, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Next, square of the resultant of two forces of equal magnitude is equal to 3 times the product of their magnitude, then the angle between them बोल रहा। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम देता ना आपको, ये टाइप का प्रॉब्लम जब भी देता, just keep on writing what he is saying. Don't think, अगर सोच लेते बैठे तो डिफिकल्ट दिखता, just write down what he is saying. Square of the resultant of two forces, तो a bar plus b bar,
स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट मतलब इसका स्क्वायर कर दो, is equal to 3 times the product of their magnitude. 3 times the product of their magnitude. What is the product of their magnitude? AB. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है बोल रहा, किसका? A और B का. तो मैग्नीट्यूड ऑफ A बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B बार इक्वल टू P. समझ में आया? तो let us just write down A square plus B square plus 2AB cos theta is on the left hand side. Do you agree? Is equal to 3AB. Under root 3. अंडर रूट निकाल दिया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी है इसीलिए. ठीक है, यू आर गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. ये स्क्वायर है ना, इसीलिए अंडर रूट नहीं लिखा मैं. अंडर रूट लिख के स्क्वायर भी कर सकते हैं आप. गेट दिस ओनली. अच्छा, ये भी पी स्क्वायर है, ये भी पी स्क्वायर है, ये भी 2p स्क्वायर कॉस थीटा होता, और ये क्या आता? 3p स्क्वायर. डू यू एग्री? Yes, sir. अच्छा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर होता. जी सर. 2p square cos theta is equal to 3p square. 3p तो square. 2p स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट? p P square square. तो p स्क्वायर कैंसिल. cancel. कॉस थीटा इज 1/√2 जी सर. प्लस और माइनस. तो थीटा क्या होता? 45 और 135. 135 डिग्रीज. दो भी आंसर होते. तो लेट अस सी ऑप्शंस में क्या दिया, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन आंसर. तो 135 दिया नहीं तो आंसर इज 45. अगर 135 दिया तो वी हैव टू कंसीडर दैट आल्सो. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज. वेक्टर्स a bar and b bar are such that a bar plus b bar equal to a bar minus b bar. Angle between the vectors a bar and b bar is. तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम देता क्या करना, जो भी दिया हम लोग कर लेना. तो व्हाट इज a bar plus b bar? A square plus B square. Equal to a bar minus b bar. So it is, can I write square on both sides just for simplicity? Yes, sir. A square Yes, plus sir. b square plus 2ab cos theta equal to a square plus b square minus 2ab 2ab. cos theta. तो anyway ये पूरा कैंसिल हो गया और आता क्या आपका? 4ab cos theta equals to 0 implies Theta is equals to 50. Cos theta Theta equals to 90 degrees. Clear? Sir. आंसर क्या है? 90 degrees. Next, same question. A bar cross b bar is √3 times a bar dot b bar. The value of a bar plus b bar is बोल के बोल रहा. ठीक है, तो this is quite simple actually. देखो क्या बोला, a bar cross b bar is equal to root 3 times. √3 times a bar dot b bar. तो it is simple. तो ये क्या होता? ab sin theta होता, AB sin theta. और इसका मैग्नीट्यूड बोला क्योंकि एक स्केलर है एक वेक्टर है, तो दोनों को सेम करने के लिए इधर मैग्नीट्यूड लगाना पड़ता, अदरवाइज दिस इक्वेशन विल बी इनवैलिड. तो √3 ए बी कॉस थीटा इंटू √3 हो गया. तो ए बी कैंसल, tan थीटा क्या आ गया? √3. √3. तो थीटा क्या आता? 60 degree. 60 degrees. Then he is asking what is magnitude of a bar plus b bar. वही पूछ रहा ना. तो it is under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. cos 60. तो क्या आता? a square plus b square plus ab whole power 1/2. Agreed? Yes, sir. तो आंसर Yes. आपका फोर्थ ऑप्शन, राइट? अच्छा, Yes, sir. यहाँ पे यू कैन डायरेक्टली आंसर दिस 17th. बोलो क्या है आंसर? ए बार क्रॉस पी बार इक्वल टू ए बार 45 degree. 45. क्योंकि साइन और कॉस इक्वल कब होते हैं? जब थीटा 45 है क्या नहीं? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 18 देखो. रेडियल वेक्टर आर बार मेक्स अल्फा एंगल अल्फा 30 degrees with x axis and beta with 60 degrees with y axis, gamma 90 degrees with z axis. Then the vector is. तो कौन सा है वेक्टर? देखो बोलो.
xi cap plus yj cap plus zk cap ठीक है by r bar यूनिट वेक्टर होता. डू यू अग्री? तो x by r I cap प्लस y by r j cap प्लस z by r k cap होता आपका वेक्टर, है क्या नहीं? मगर x by r क्या है बोलो? cos अल्फा cos alpha प्लस cos बीटा प्लस cos गामा. तो अभी अल्फा क्या है 30, तो cos अल्फा क्या होता है √3/2 I cap और बीटा क्या है 60, तो हो गया 1/2 j cap और गामा 90 है तो cos गामा क्या होता है 0. तो आंसर क्या है आपका? व्हाट इज योर आंसर? सेकंड ऑप्शन. अग्रीड? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 19 देखो. I cap, J cap, K cap represents vectors x, y, z respectively. Then angle theta between these two vectors. Angle कैसा निकालते दो वेक्टर्स के बीच में? Theta equals to cos inverse of a bar dot b bar by magnitude of a bar into magnitude of b bar. Agreed? Anyone remember this? yes So I'll just write down. यस सर देखो, what is a bar dot b bar? Magnitude of a bar into magnitude of b bar into cos theta. So what is cos theta equal to? A bar dot b bar by magnitude of a bar into magnitude of b bar. ठीक है. अब आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? दो वेक्टर दिया i j k एंड i j. तो i बार j बार k बार एक वेक्टर दिया और b बार क्या दिया i बार प्लस j बार दिया, राइट? तो एंगल बिटवीन देम कैसा निकालते? a बार डॉट b बार बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इक्वल टू cos थीटा ना. तो टेल मी व्हाट इज a बार डॉट b बार? 1 plus 1 by what is magnitude of a bar? root 2 1 square plus 1 square plus 1 square. इसका 1 square plus 1 square. तो क्या आता आपको 2 by √3 into √2. root तो basically it is 2 by √3. Can you by understand √3. that? yes तो cos theta is equal to cos inverse of 2 by √3 आता. Do you agree? cos inverse of 2 by √3. ऑप्शंस में नहीं है क्या? नहीं है सर No, sir. 1 2 ये √3 है, ये भी √2 है, राइट? ओके, आई थिंक इट शुड बी cos इनवर्स हियर. इधर cos इनवर्स होना चाहिए, है क्या नहीं? क्लियर? yes But sir, key में 1 है. की में क्या दिया? हेलो, Option 1 is correct, it seems. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. ठीक है. अपना सही है सर, की गलत है सर. नहीं, एक्चुअली की भी मतलब चेक करेंगे हम लोग. साइन इनवर्स 1 by √3 करेक्ट है क्या? तो cos इनवर्स लेट अस सी. एक्चुअली करेक्ट है कि देखो, सपोज ये थीटा है, ये थीटा है, cos थीटा √2 by √3 है ना, करेक्ट? जी what will be this side? 3 minus 2, right? जी सर. तो 1 होता ना, तो थीटा क्या हो गया? 1 by root देखो साइन थीटा क्या हो गया? 1 by root 3. 1 by √3. तो साइन इनवर्स ऑफ 1 by √3 इज ऑल्सो करेक्ट. हाँ. So actually we were checking in terms of cos inverse, but he has given in terms of sin inverse. Okay, so cos inverse of 2 by √3 is equal to sin inverse of 1 by √3. Clear? यस सर. ये recent question है, ये अच्छा है. Yes, Okay, sir. so this is recent 2009 में आया. Okay, anyway, next AIMS 2009. देखो, a force दिया और point दिया
टॉर्क पूछ रहा तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग। कैसा करना बोलो? R cross R cross F. क्रॉस प्रोडक्ट करना। R cross F. ओके, सो आई एम लीविंग दिस, यू डू। ये कोई भी कर सकते हैं, कुछ है नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन। 21 वाला फोर्थ ऑप्शन सर। कौन सा? 21 वाला। 6 वेक्टर्स दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो और- देख के करना है, ये भी कर लो, जस्ट इंट्यूशन से करना है आपको, ठीक है। तो अंदाजे पे कर ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा ये देखो, एंगल बिटवीन ए बार एंड वाई एक्सिस बोल रहा, ए बार और वाई एक्सिस के बीच में एंगल पूछ For रहा। 13. हाँ 13th कौन सा बोले? 13th and 14th key is telling that option 3 is correct. 13 and 14. 13 and 14। So, हाँ 13 का क्या दिया ऑप्शन? 3 is correct, it seems, sir. 3 और 14 का 4 कहते हैं। Square of the resultant of two forces of equal magnitude is 3 times the product of their, ये यही क्वेश्चन है ना ये? वो बच्ची बोल रही सर। एक बार देखो की में देखो, कौन सा 14th का देखो पहले, 14th का की Sir, क्या है? 13 and 14 are 3 option. अच्छा 13 का भी 14th 3 का है, देखो 14 पहले का भी आंसर। 3 है, sir. दोनों का 3 है सर। 14th का 60 डिग्री है आंसर अकॉर्डिंग टू की। जी सर। देखो क्वेश्चन देखो, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट Yes, ऑफ sir. टू फोर्सेस, यहाँ देखो स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड बराबर। तो स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट बोला ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 3ab बराबर है। और ये बोला टू फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो ये पी स्क्वायर और पी स्क्वायर ले लिया, तो ये 2p स्क्वायर कॉस थीटा, ये 3p स्क्वायर आ गया, ये 2p स्क्वायर आ गया, इधर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होता, p स्क्वायर हो जाता 2। नहीं करेक्ट कर लो कि आई थिंक इट इज 45 डिग्रीज ओनली। एंड 13th का देखो, फिर से चेक करो, कोई किसी को प्रॉब्लम है 14th में या सॉल्यूशन में? No, sir. एंड 13th का देखो एक बार। अच्छा 13th वाला ये है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था, 238 4 - 4 अल्फा, 238 4 - 4 अल्फा, कर रहे थे हम लोग वो प्रॉब्लम या इधर? Yes, sir. 238 4 - 4 अल्फा, 238 4 - 4 अल्फा, तो 2 × 4 इज 8, ये करेक्ट है, -12 करेक्ट है, 8 अल्फा भी करेक्ट है। तो ये आ गया 8 - 12, तो उधर जाके 4 हो गया, 4 करेक्ट, 1/2 वो भी की करेक्ट कर लो। If there are any problems in the key, you just ask me in WhatsApp, okay, like this. अगर की में कुछ गलत है तो ठीक है, okay. Any doubts in this section, later section, anyone? सर वो एक क्वेश्चन रहता, क्या बोलते हैं, वेक्टर्स का चेक प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, एक वेक्टर देके वो वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, वो क्वेश्चन पूछ रहा सर, करने नहीं आ रहा। प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसा निकालना बोल रहे हैं आप? हाँ तो देखो अगर वेक्टर आई जे के में दिया तो 4i कैप, फॉर एग्जांपल 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, अगर ऐसा दिया वेक्टर तो प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता? 4. 4 होता। वाई एक्सिस क्या होता? 5. सर एक 5. क्वेश्चन है वो बोलते हैं आपको, एक्स एक्सिस क्या होता? 7 होता। बोलो क्वेश्चन बोलो।
A and B are two vectors given by 2i. A equals to 2i and B equals to 2i 2i, plus 4j 2i, plus 3j. B equals to 2i plus 4j. The magnitude of component of A and A along B is. A along B ना, A along B. हाँ सर. देखो A along B क्या होता, ये B है और ये A है, A along B ये होता, A along B ये होता, ठीक है, ये होता, ये है A along B का, ठीक है, ये थीटा है तो ये A cos थीटा होता. डू यू एग्री? Yes. Yes sir. क्योंकि ये क्या है, A sin थीटा है जो हमें अपने को नहीं चाहिए. वी नीड A cos थीटा. अब A cos थीटा कैसा आता बोलो? A बार डॉट B बार is equal to AB cos थीटा. हाँ सर. Now if I divide B here and B here, what will I get? A cos A theta. cos theta. ठीक है, समझ में आया? हाँ सर. तो एक सेकेंड, ये कहाँ गया? कौन सा पेज है ये पेज है, ठीक है. तो you remember two things: projection of A on B is A bar dot B bar by B bar. देखो नाम में भी ऑन है, फॉर्मूले में भी ऑन बीच है, देखे? हाँ सर. प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन बोल रहा हूं मैं, along बोलता जनरली, मगर मैं ऑन बोल रहा हूं क्योंकि याद रखने में आसानी होती. इट इज A bar dot B bar by B bar by A bar. A bar. अच्छा, ये कौन सा प्रोजेक्शन है? मैग्नीट्यूड. स्केलर प्रोजेक्शन है. क्या है? स्केलर प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन. क्योंकि आपको स्केलर ही आता है, ठीक है. अच्छा, अगर वेक्टर पूछा तो क्या करना, बाद में ये प्रॉब्लम करने के बाद, Unit vector. ठीक है. तो देखो A बार 2 3 है, B बार 2 4 है, राइट? A बार क्या है? 2 3. 2 B बार क्या है? 2 4. 2 I 4. तो वी नीड B बार ऑन A बार और A बार ऑन B बार. A bar on B. A bar on B bar. A बार ऑन B बार होना ना, तो क्या करते? A डॉट B बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B. बोलो A डॉट B क्या होता? 2 into 2 4 प्लस 3 into 4 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B बार क्या होता? अंडर रूट ऑफ 2 4 B square plus प्लस 4 स्क्वायर. तो क्या आता? 4 प्लस 4 12 minus 12 बाय root of 4 plus 8. रूट ऑफ 4 प्लस 12 ना. 20 root 20. 12. तो क्या आता ऊपर? 16 बाय By root 12. रूट 12 कैन बी रिटन एज 20. 2 root 3. Sir, root 20 no. Root 20 sir. 20 आता Cos by सर. 16 plus 4. ओके रूट 20 आता सर. ओके ओके. रूट 20 कैन बी रिटन एज 2 root 5. हाँ. सो ये है आंसर. जी सर. अगर बोला के व्हाट इज द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन B बार, तो क्या करते? पहले स्केलर निकाल लेते. स्केलर क्या है? A बार डॉट B बार बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B बार B bar. इनटू यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना B बार के डायरेक्शन में, विच टर्न्स आउट टू बी A बार डॉट B बार बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B बार स्क्वायर इनटू B बार. डू यू एग्री? क्योंकि B कैप को B बार बाय B बार लिख सकते, B बार बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B बार लिख सकते. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? समझ गए सर. अच्छा, नेक्स्ट वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ, आप लोग बोलो क्या है? B बार ऑन A बार. on A bar. AB by B. A बार डॉट B बार बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A bar. A बार होल स्क्वायर इनटू A बार आता. तो देखो ये वेक्टर आता आपको, बेसिकली ये क्या आता है? एक वेक्टर आता.
ये भी एक वेक्टर आता। क्यों? ये पूरा एक स्केलर है, स्केलर इनटू यूनिट वेक्टर आपको स्केलर ही आता है। ये पूरा स्केलर है, ये पूरा स्केलर इनटू वेक्टर एक वेक्टर आता। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर पूछा, look at the question carefully. The vector component of a bar perpendicular to b bar, तो कैसा निकालते? तो एक चीज देखो, ये a बार है आपका, ये आपका b बार है, ठीक है, ये b बार है। नाउ वॉच केयरफुली, ये जो कंपोनेंट है ना, वो जो है ना आपका रिक्वायर्ड ये है, आई कॉल इट ए वाई, और इसको क्या लेंगे? ए एक्स लेंगे। इसको क्या लेंगे? ए एक्स। क्लियर? समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो नाउ कैन यू सी के ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए। तो ए वाई क्या होगा? ए बार माइनस ए एक्स बार। तो अभी फाइंड करें आप, क्या फाइंड करें? ए एक्स अभी फाइंड करें ना, ए बार डॉट बी बार बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार होल स्क्वायर इनटू बी बार। ठीक है, समझ में आया? तो ये फॉर्मूला यूज करना आप। क्या क्या फाइंड करने? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार फाइंड करना। ठीक है, जी सर। यस सर। अच्छा, व्हाट इज एक्स? कंपोनेंट ऑफ बी बार नहीं सेम थिंग, कंपोनेंट ऑफ हाँ कंपोनेंट ए बार पैरेलल टू बी बार। अलोंग में बोल सकते हैं, अलोंग में बोल सकते हैं, ए बार अलोंग बी बार। ठीक है, और कौन सा कंपोनेंट? वेक्टर कंपोनेंट, ये ए एक्स है। ठीक है, अच्छा, अगर स्केलर कंपोनेंट, ये भी वेक्टर कंपोनेंट है ना, अगर स्केलर कंपोनेंट पूछा ए वाई, खाली स्केलर कंपोनेंट पूछा तो क्या करना? मॉड निकाल लेना उसका, ए बार माइनस ए बार डॉट बी बार बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार होल स्क्वायर इनटू बी बार। मॉड निकाल लेना बोले तो क्या, जो आंसर आता ना आपको आई जे के में, उसका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वो स्क्वायर कर लेना। समझ गए? हाँ सर, समझ गया। ओके फाइन, ये कंपोनेंट्स का पूरा है। और कुछ पर्टिकुलर डाउट्स है वेक्टर्स में? नहीं है सर। और ये एक्सरसाइज कर लिए भाई कल सर ये सेकंड एक्सरसाइज के यस सर कर लिए। हाँ, कुछ डाउट्स है इसमें? सर ये सेकंड एक्सरसाइज में 25 से लेके 30 के क्वेश्चंस नहीं आ रहे सर। 25 से 30 क्या है? 25 से 30 हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट? हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स having different magnitudes can be added to give zero resultant? समझ में आया? ऑप्शन 2। नहीं देखो, how many minimum number of coplanar vectors having different magnitude बोल रहा। अगर सेम मैग्नीट्यूड बोला तो आंसर क्या रहता? 2 वेक्टर्स रहते बस। डू यू एग्री? सेकंड ऑप्शन एक वेक्टर एक डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों कैंसिल कर ले सकते। समझ गए? वो कब पॉसिबल है? इक्वल मैग्नीट्यूड रहा जब, इक्वल मैग्नीट्यूड रहा जब। मरीन क्या बोल रहा? मैग्नीट्यूड आर डिफरेंट बोल रहा। मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो 2 वेक्टर्स का तो जीरो आता नहीं, कैसा भी थर्ड वेक्टर होना पड़ता। तो मिनिमम नंबर 3 रिक्वायर्ड है। समझ में आया? जो पूछे डाउट उनको? यस सर।
ओके 26 क्या है? हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन डिफरेंट प्लेन कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट? तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर इन डिफरेंट प्लेन बोल रहा. डिफरेंट प्लेन मतलब मिनिमम 3 वेक्टर तो रहना कैसा भी डिफरेंट प्लेन में. देखो 2 वेक्टर तो एक ही प्लेन में रहते, समझ में आया? अब ये 2 वेक्टर ड्रॉ करा तो एक ही प्लेन में रहते. अब थर्ड वेक्टर जो है ना, ये प्लेन के बाहर भी रह सकता या प्लेन के अंदर भी रह सकता. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. तो डिफरेंट प्लेन जब बोल दिया तो मिनिमम 3 तो आ गए. अच्छा हो गया. अच्छा ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और एक वेक्टर ये प्लेन के बाहर है. अब मेरे को बोलो अगर तीसरा वेक्टर प्लेन के बाहर है तो उनका रिजल्टेंट 0 आ सकता? No. नहीं आ सकता. क्यों? ये 2 वेक्टर्स जो है ना, जो प्लेन में है वो प्लेन में ही किसी वेक्टर को कैंसिल कर सकते. प्लेन के बाहर के वेक्टर के एक कंपोनेंट को कैंसिल नहीं कर सकते. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Yes, sir. I'll just write down. बेस्ट एग्जांपल इज, अगर एक x डायरेक्शन में है और एक y डायरेक्शन में है वेक्टर, y डायरेक्शन में और एक वेक्टर है, और एक वेक्टर जो है ना z डायरेक्शन में है सपोज, तो xy एक प्लेन में है. तो अगर कोई वेक्टर xy प्लेन में रहा तो x और y का कुछ कॉम्बिनेशन लेके कैंसिल कर सकते हैं उसको. डू यू एग्री? मगर वो प्लेन के बाहर है z, तो आप कुछ भी कर लो x और y से z को कैंसिल नहीं कर सकते. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. No combination of x and y can cancel z. In that means what? We need a fourth vector. तो मिनिमम कितने है? 4. कौन सा नंबर था? 26. इसका आंसर क्या है? 4. इसका आंसर क्या है? 3. What is maximum number of components into which vector can be split? Infinite. समझ में आया? ये वेक्टर है, इसको 2 कंपोनेंट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं और तीन कंपोनेंट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, और मर्जी आपकी. कंपोनेंट मतलब क्या? सम ऑफ अदर वेक्टर्स बोले ऐसा. दिस वेक्टर शुड बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ अदर वेक्टर्स. इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं आप, मर्जी आपकी, और यू कैन गो इन एनी डायरेक्शन. तो आंसर क्या है उसका? इनफाइनाइट. अग्रीड? Infinite. G, sir. Okay. Maximum number of rectangular components in which vector can be split. Rectangular components. Rectangular components मतलब perpendicular रहना components. तो 2 ही components में आप divide कर सकते. समझ गए? एक वेक्टर है, उसको 2 perpendicular components में divide करना है. तो you can divide like this, or you can divide it like this, or you can divide it anyway, but 2 ही चाहते. or you can divide it like this. समझ में आया आपको? Yes, please, तो sir. 2 परपेंडिकुलर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 2 ही आते हैं हमेशा. समझ गए? ओके. वेक्टर सम ऑफ Yes, sir. फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी. तो क्या है? 10 और 6 का वेक्टर सम क्या हो सकता? मैक्सिमम क्या हो सकता? 10 + 6 पैरेलल रहे जब, ठीक है. मिनिमम कितना होता? 10 - 6 एंटी पैरेलल रहे जब. नो टेल मी, 10 + 6 16 होता, 10 - 6 क्या होता? 4. 4 होता. तो 16 और 4 के बीच में लाई कर सकता. 8. 16 और 4 के बीच में लाई कर सकता. तो 2 इज रॉन्ग, 18 इज रॉन्ग, 20 इज रॉन्ग, तो 8 इज करेक्ट. क्लियर? और कुछ डाउट्स है अम्मा? No, sir. पूरे ईच एंड एवरी प्रॉब्लम करना आपको, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कितने हैं? 60 है, राइट? 66 ईयर, 66 ईयर, और इधर कितने हैं? 21. 21. तो 100 से ज़्यादा नहीं है अम्मा प्रॉब्लम्स. तो आप लोग पूरे कर लेना, क्योंकि दिस इज़ नॉट ए वेरी बिग होमवर्क. एक दिन में कर ले सकते. 100 मतलब मैक्सिमम 120 मिनट्स में कर लेना आप लोग. तो 2 आवर्स लगते हैं आपको. तो 2 आवर्स स्पेंड करना आप लोग एवरी डे.
ठीक है, अच्छा ठीक है नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, नेक्स्ट टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस की है, राइट? उसके फाइल शेयर कर दिया मैं ऑलरेडी। नहीं करे सर, कितने फाइल शेयर करा मैं? 4 करे कल। 4 करा, अच्छा एक बेसिक मैथ्स की थी। ये नहीं और- करा, वो बेसिक मैथ्स के कर लिए पूरे, हाँ कर लिए सर। और एक बेसिक मैथ्स का एक और असाइनमेंट कर लेता हूँ मैं, वो जूनियर्स को एग्जाम है मंडे, ठीक है? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री के पूरे वो मंडे देता हूँ मैं। अब ये तो लीक हो जाता पेपर, तो मंडे देता हूँ एग्जाम होने के बाद, तो आप लोग जो है ना वो भी कर लो एक बार। अच्छा ये शेयर करता हूँ आज, यूनिट्स एंड डायमेंशंस का करता हूँ, एक बार पढ़ो, क्योंकि देखो इसमें कुछ पढ़ाने के लिए खास है नहीं, थियरी है मोस्टली। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस का डायमेंशनल एनालिसिस और एसआई और सीजीएस सिस्टम आप लोग पढ़ लो, ठीक है? मैं क्लास में क्या डिस्कस करता हूँ, मैं क्लास में सिर्फ एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस डिस्कस करता हूँ, जिसमें परसेंटेज एरर, अप्रोक्सीमेशन कैसा करना, उसका थियरी डिस्कस करता हूँ, और सिग्निफिकेंट फिगर्स की थियरी डिस्कस करता हूँ, ठीक है? क्लियर? तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की थियरी भी है मेरे पास, ये देखो, ये एक्सरसाइज है यूनिट्स एंड डायमेंशंस का, ये भी आप लोग करो, ठीक है? बहुत इजी रहता। और उसके बाद ये जो है ना मैं डिस्कस करता हूँ कल क्लास में, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या है, फिर भी आप लोग एक बार पढ़ लेके आओ। तो आज 3 फाइल्स शेयर कर दो, 4 शेयर कराना मैं, कल वेक्टर्स के 3 करे और नहीं उसके नंबर तक करा, नंबर 4 तक करा ना, 04 तक करा, हाँ 05, 06, 07 3 फाइल्स कर रहे हो आज, ठीक है? ठीक है तो वो फाइल्स अच्छा पढ़ लेके आओ, कल करके आओ, और प्रॉब्लम्स पूरे करो, कुछ डाउट्स रहे तो टिक कर लो एक्सरसाइज। वो डाउट्स ही डिस्कस करेंगे, पूरे प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के बदले जो डाउट्स है आप लोगों को वो डिस्कस करें तो ज़्यादा फायदा रहता। ठीक है ओके, सो आई विल एंड द क्लास टुडे। जस्ट कंप्लीट, इफ यू हैवंट कंप्लीटेड जस्ट कंप्लीट दोज असाइनमेंट्स। खाली ये जो मैं दे रहा हूँ वो कंप्लीट कर लिया तो काफ़ी है, इजीली 120 150 के रेंज में मार्क्स ला ले सकते अगर पूरे करे तो, जो दे रहा हूँ एवरी डे। सर आज की फाइल वेक्टर्स की फिर से अपलोड करिए। ऑलरेडी ग्रुप में है ना अम्मा, नहीं लिया? नहीं आप जो लिखा है नहीं करे आप ना जो वो एडिशन कर करे सर। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कर देता हूँ। ओके ठीक है, मेरे को अभी जूनियर्स की क्लास है, विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है ओके थैंक यू सर।